हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट स्टोरीज विद जेनेट। और आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं। मतलब हिप हॉप सीन में अगर आप लोग हो तो आप लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। मतलब फ्यूचर हिप हॉप है। तो कृतज्ञ है भाई, कैसे आप? What's up bro? सब तो कैसा लग रहा है आज? बढ़िया भाई, I'm just excited and yeah. अभी मिक्स टेप रिलीज हुई है और काफ़ी हाइप है उस चीज़ की। हाँ bro, like I'm happy कि it's finally out हाँ and like जो भी response आ रहा है, what like the feedbacks I'm getting काफ़ी ज़्यादा like overwhelming and it's like people are connecting like they're feeling what I felt while I write हाँ, it, you know, like they're feeling what I felt when I wrote it. So that's a nice thing. तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ. सो व्हाट्स द जॉनरा ऑफ योर मिक्स टेप? Okay. Genre, bro. Like mostly it's new wave trap and melodic rap. But like uski inspiration, like I've got like from very, you know, like old. From like very old school, like वो सब भी उसमें touch है. हाँ Because that's like what I got inspired from is बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जो old school में भी हैं and I got inspired because I listen to a lot of artists from a lot of different timelines and like सबका अलग अलग generations है. So it's like, you know, I'm getting inspired from T-Pain, from Lil Wayne, ठीक है. I'm getting inspired from A Tribe Called Quest, J. Cole, Nas. हाँ Like it's a very vast spectrum, ठीक है. So that's how I got inspired. But I was always like, you know, like I studied their art and I was like, okay, I know enough. Like I'm learning from them and now I'll create what I want. सही। सही है। Yeah. तो मतलब ऐसे दो ट्रैक्स जो आपको लगता है कि भाई जो लिसनर्स हैं उनको पक्का पसंद आएंगे, दो ट्रैक्स ऐसे? Bro, I feel okay. First thing first, मुझे I feel people gonna dig यकीन because जब से वो मैंने snippet डाला है, everyone was excited about it जब मैंने snippet डाला था तब से. And like even shows पे like it wasn't even out लेकिन लोगों को एक एक लाइन गाने की याद थी. So that was a great thing for me. Because I genuinely, it's like a very personal track to me. So like people just like loving what I personally love, that was a good feeling. Also there's this another track, Finesse, and to be honest, like that track is very special to me also क्योंकि उसकी जो melody है ना, it came to me in my dream while I was sleeping. तो भाई it was very special to me. And I did it in a one go. यहीं पे record किया था मैंने, like literally यहाँ पे mic and इसी mic पे record करा था. So that was a great feeling. तो बस वही है because it's like कि you know I was just creating what I like. I wasn't creating कि like भाई ये लोगों को पसंद आना चाहिए या कुछ. तो that was the best thing for me. तो जो मेरा क्वेश्चन है, कितना टाइम लगा आपको ये मिक्स टेप रिलीज करने में? मतलब जो प्रॉपर सॉन्ग्स बनाने में कितना टाइम लगा आपको? भाई okay, तो this mixtape was set to release like last year. But like I felt like I'm rushing the process. And तो I was like कि यार I was literally trying to record the entire thing in like 3 or 4 days. जब मैं last year की बात कर रहा हूँ. तो then I was like यार I'm kind of rushing the process and it's not good. Like it's not good for the project itself. तो I was like यार नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ. फिर उसके बाद कोविड वाला सीन हो गया. तो भाई टाइम है टाइम. तो like जैसे ही like कोविड के बाद से like थोड़ा बहुत ट्रैवल वगैरह भी, कोविड तो अभी भी like I'm talking about लॉकडाउन के बाद से जैसे you know थोड़ा ट्रैवल वगैरह सही हो गया. तो मैं सीधा भाई like स्टूडियो आया, मैं यहाँ पे लॉक हो गया and I created what I wanted. And I'm so like happy कि I took my time क्योंकि जो चीज़ मैंने बाद में बनाई है ना, वो पहले मैं नहीं बना पाता to be honest. And बहुत सारे tracks बनाए मैंने, like it took me around like 21 months
to make the entire project. And इसमें बहुत सारे tracks हैं जो मैंने बनाए और मैंने like हटा दिए और लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ tracks रखे हैं जो पुराने हैं and I know like it's not close to what I'm creating right now, but I wanted कि वो सब रहें क्योंकि I had to show the glow up, you know, कि like I'm constantly evolving and I'm, you know, improving and I'm like introspecting and improving myself. That's why you named your mixtape Glow Up, है ना? Yeah, it's called Glowing because I was inspired from a track of mine. अच्छा. तो मेरा एक track आया था जीलो. हाँ. ठीक है. And वो तो एक दिन पता नहीं I don't know why I was just randomly मैं ना गाड़ी में कहीं जा रहा था घर वालों के साथ था and तो मतलब ऐसे ही मैं randomly ना comments पढ़ रहा था अपने track के. तो I was like यार ये sound ना I really like loved making that because उस time पे it was still someone doing autotune was new to people, even though it was like 2018 and but I felt कि like यार I should work more on this sound. तो फिर मैं comments पढ़ रहा था I got inspired कि like then I was कि मेरे दिमाग में था कि हाँ I'll make a mixtape with this sound, but मुझे ये नहीं पता था but वही है 3 साल में like I got to know कि like it came it you know everything just like अपने आप वो चीज़ें बनने लग गई. It wasn't intentionally मेरा कि ये था कि मुझे ऐसा कुछ दिखाना है, वो एकदम intentionally जो चीज़ बन गई. It was really good. जैसे कि आपने कहा कि मतलब ग्लो अप जो आप बता रहे थे, तो आपने ऑफ कैमरा जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि एक 2019 का भी ट्रैक है. हाँ. तो वो मतलब क्या ट्रैक है, कौन सा? ओके जो I'll be really honest, ठीक है, जो स्टार्टिंग के 3 ट्रैक्स हैं वो पुराने ट्रैक्स हैं, ठीक है. एंड इवन केवेंटर्स लाइक उसके बाद even though I like added a little skit in the Keventers, but यही 4 ट्रैक हैं. इसके बाद like ओके तो ये 4 ट्रैक्स हैं. ये जो स्टार्टिंग के 3 ट्रैक हैं ये पुराने हैं. इनकी बीट्स मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई थी एंड like I was working on them. Even though like सब में like थोड़ा बहुत इधर उधर final like touch वगैरह तो obviously हुए हैं, लेकिन mostly like most of the tracks were done पहले ही. सही. तो सबसे पहले shout out to MC Code and Spit Dope. Yes sir. तो साइफर जरूरी है. Do you think साइफर जरूरी है? कई रैपर्स पता है सोचते हैं क्या साइफर में जाके क्या करना, लिखेंगे प्रोड्यूस करेंगे खत्म. भाई hip hop has always been about like you know a community thing and it always going to be a community thing. ठीक है. So everything has its importance I feel, क्योंकि cypher भी ज़रूरी है because for me I go like जितना cyphers ज़रूरी है उतने ही studio sessions भी ज़रूरी है. And it's like कि ये 2 चीज़ें हैं, तुम इन दोनों में से select कर सकते हो, लेकिन it's better कि अगर तुम ना करो, इन दोनों को ही adapt करो because that's the it's like both best of the both worlds. Your next question is your most favorite and least favorite song from your mixtape. हाँ भाई ऐसा तो कोई like okay most favorite तो pro like entire mixtape because I've made a lot of tracks and मैंने उनमें से जो select करके जो मुझे personally best लगे तो वो मैंने वैसे ही बनाई है. सही. तो I love the last track I did because if you're gonna listen to it it's just me, you know, like जो मैंने जिस track से मैं inspire होके मैंने पूरी mixtape बनाई है ना, मैंने उसी beat पे फिर से like एक kind of rebuttal track लिखा है कि like what's going on after 3 years of my life and so that was like a very good thing for me क्योंकि उसमें I can see myself that I've improved so much and that was a really good feeling क्योंकि okay in that track I was saying जो 2018 में मैंने निकाला था ना, उस there was this line कि स्टूडियो नहीं इसे कहो तुम लैब मेरी, ठीक है, I got street knowledge in library. तो at that time it was not even like कि मैंने it was like उसका मतलब ये था उस लाइन का कि I am experimenting and that's why it's like a lab you know lab. लेकिन like उसके 1-1.5 साल बाद I got my own studio. तो that was like कि like you know जो मैंने लिखा था वो सब सच हो रहा है and it literally you know manifested a lot
तो वही सब it was a like grateful feeling, like I was blessed कि हाँ भाई like you know. So when I did that line again, so that meant a different, like there was this feeling attached to it कि भाई ये सच हो गया, you know. So that was a very good feeling for me. अकॉर्डिंग टू यू ऐसे 4 ऐसे आर्टिस्ट जिनके साथ आप काम करना चाहते हो वो बहुत लेजिट है? 4 ऐसे आर्टिस्ट जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. Okay, I want to work with I want to work with Fateh, ठीक है, Imran Khan, OG bro, OG, he's OG. because also like I would love to work with, there's this guy Rage. So he literally recorded my first track. Achha. And you know, he's like a brother to me. I really love his you know, I really love his stuff, and I used to bump his EP, and I really love this, like what he creates, whatever he creates, you know. It's, I don't know, I feel like it's very good, and I want to work with him. So जो मिक्सटेप की बातें थी वो तो बहुत बहुत ज़रूरी है. हाँ. बट जो कृतज्ञ उनकी मतलब स्टोरी क्या है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है किसी को पता होगा. हाँ. कि पता होगा कि हाउ यू गेट इनटू म्यूजिक. Okay, I was 14, ठीक है, मैं 14-15 साल का था when I started writing my, you know, then I started writing, and फिर like what I did was कि I was really into it, क्योंकि मुझे याद है स्कूल टाइम से ही, you know, I was जब से मैं like you know 9th में 10th में था, उस टाइम से I got into it, and I was constantly thinking about it, like there was this, you know, कि like I found something, है ना. So there was this feeling कि I have to work and like you know I have to write. Then I got into ciphers. मैं ciphers में गया, and I, you know, then I watched and I learned a lot, even though like you know there was this participation. I felt like you know कि like I am a part of something, and I never knew कि like the scene is going to blow up like this, and ये सब scene हो जाएगा. But yeah, like even though there wasn't like कि मुझे मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भाई इसमें मुझे scope बनाना है या कुछ ऐसा करे. I was doing it because I love doing it, you know, and that was one of the most good reason to do it, because you love doing it, not because it's a career opportunity for you, or like है ना. So that's a great thing, and फिर you know then I got like cosigns and stuff. एक घर पे भी assurance आ गया कि like like you know Raftaar is supporting Gale Hip Hop, and you know एक घर वालों को भी एक assurance मिल जाती है कि you know कि it's like कि you're painting, ठीक है. For example, if you're painting and घर वालों को पहले समझ नहीं आएगा कि भाई क्या करते रहता है, ये अपना टाइम, उनके लिए यही है you know कि अपना टाइम बर्बाद कर रहा है या you know कुछ भी कर रहा है. But if like a really good painter like acknowledges your painting, so they'll be like हाँ ये अच्छा कर रहा है, तू कर. तो वो सीन हो गया मेरे साथ. So that was a great thing for me. तो कृतज्ञ भाई जैसे आपने बैटल्स करी, हाँ, उधर ना काफी ब्लोन अप हो जाता है सीन. हाँ. तो ना मैंने देखे हैं कि कई जो आते हैं ना बैटल, लोग रोके जाते हैं. तो डू यू थिंक कि उस बीच में दोनों के बीच में कुछ दुश्मनी टाइप्स कुछ ऐसा होता है, ये जो बैटल में होता है वो बैटल में रह जाता है? भाई like अगर like whatever happens in the ring, जो भी like चीज़ है ना वो रिंग में ही रहनी चाहिए, ठीक है. अगर तुम रिंग के बाहर लेके जा रहे हो, you're not a good battle rapper for me. If you're like holding grudges and like even though if like it depends कि like अगर सामने वाले ने कुछ ज़्यादा ही पर्सनल बोल दिया या like you know even though there are like no boundaries but there are boundaries. जैसे ड्रेक और पूशा टी वाला सीन हो गया था, you know. Even though it wasn't like battle rap, but it still was like a you know some lines were crossed, and that like वही scene है भाई. तो but I feel like if you're a good battler, you won't take things personally, and you won't hold grudges, and like trust me, battle rap isn't for everyone. ये तो है. So मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक जो दिल्ली हिप हॉप सीन है वो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है,
क्योंकि हम लोग सुनते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट हो गए, जैसे हाँ, डिवाइन हाँ, हो गया, हाँ, एमईवे हो गया, तो इनकी वजह से मुंबई हिप हॉप सीन तो काफ़ी ऊपर है, बट दिल्ली का जो हिप हॉप सीन है वो अंडररेटेड है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ भाई, लाइक व्हाट आई से इज कि आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, बट आई फील कि मुंबई में अ लॉट ऑफ रैपर्स साउंड लाइक साउंड अलाइक, के लिए एक जैसा साउंड करते हैं बहुत सारे, लेकिन बट दे स्टिल हैव दैट मुंबई फीलिंग विद देम, है ना। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में सारे रैपर्स अलग भी साउंड कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो दिल्ली वाला टच है उनमें। सो लाइक इवन तो ऐसा नहीं है कि भाई इट्स नॉट अ मुंबई और दिल्ली थिंग, क्योंकि मुंबई में भी बहुत ऐसे ऐसे रैपर्स हैं जो मतलब बहुत जब सबकी एक एस्टैब्लिश्ड साउंड है अलग अलग, जैसे सीज को देख लो आप, या ग्रेविटी को देख लो, यू नो। सीज और रेबल का भी वो आया था ब्लॉक पार्टी स्पिट डोप पे, दैट वाज डोप मैन भाई, दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू यू नो हैपन, बिकॉज I could like literally meet Siege, and I love his projects जो भी आए हैं अभी, and he's a really chill dude. It was like कि meeting my Facebook friend in person. In person. Yeah. So that's a different feeling. It was like कि it was that feeling जो मुझे तब आती थी जब मैं साइफर्स पे जाता था, मैं किसी को जानता नहीं था, मैं नर्वस होता था उस टाइम पे, बट या तो यही सीन है। तो सीट से मिले आप, स्पिट डॉप वगैरह होता रहा, सब कुछ ठीक, आपने अपनी कैसे साउंड फाउंड करी कि यहाँ पे ये कृतज्ञ की ऑथेंटिसिटी है ब्रो, इसकी यूएसपी है। जैसे रफ्तार की एक काफी वो है ना, रॉनेस उसकी आवाज में, हरजश की है जैसे, कृतज्ञ की भाई काफी अलग है, टेक्सचर है वॉइस में, वो कैसे भाई? ओके, सो देयर वाज दिस मिसकंसेप्शन जो मुझे लाइक बहुत मतलब आई डोंट नो, आई वोंट से कि it was like कि मुझे starting से ना like लोग बोलते थे कि like you don't have a deep voice so you can't rap, like तुझे like there was this stereotype कि like if you're a rapper you should have a deep voice, but like वो धीरे धीरे like टूटा जब when I saw J. Cole, then I saw Kendrick, their voices like they can modulate it like crazy, so I was like कि I was sleeping on my level, तो I was like bhai nahi, this voice of mine is a weapon and I have to use it for myself, like then I started experimenting, and I worked on a lot of I worked कि मेरा कोई comfort zone नहीं होना चाहिए, ठीक है, even though this is my melodic phase, but there's a lot of things that I have in store for you, so that's gonna break the box that I've created कि like oh ये तो melodic rap है यार, कुछ भी यार। So if you ever get into a beef, तो क्या होगा आपके हिसाब से? कोई पर्सनली बोलता है भाई कृतज्ञ डैश डैश डैश, बस अब बीफ स्टार्ट है, तू रिप्लाई करेगा कृतज्ञ निकला तो तू हार गया, ऐसा वाला सीन। भाई मैं ना लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे लाइक अटेंशन में देता ही नहीं हूँ, तो नेगेटिविटी से दूर। हाँ वही है, लेकिन इफ इट्स लेजिट लाइक कि हाँ अगर कुछ हुआ है तो लाइक ऑब्वियसली आई एम गोना रिप्लाई ये ना मेलोडिक वे, आई एम गोना लाइक क्या मेलोडिक वे में वही ग्लो वाला, वी नेवर नो लाइक जो भी वाइब होगी उस हिसाब से वो तो हाँ, बिकॉज इसके बाद लाइक आई एम गोना प्ले यू समथिंग दैट्स गोना चेंज योर पर्सपेक्टिव। तो ना एक गाना आया था, आप थे उसमें, स्मोक था, हुजूर था, और आई थिंक वीडियो में MC कोड भी था, उस गाने का नाम मेरे को याद नहीं। That was Gutter Rich। उसमें वायशाक, Insanoid, Smoke and me। उसके पीछे की स्टोरी बताओ यार, वो काफी, मैंने उसके पीछे के सीन्स देखे और वो GoPro से शूट हो रहा था और एक ही माइक पे सारे लड़ रहे हैं और आके अपना वर्स स्पिट कर रहे हैं। That was like a very okay, so Insanoid wrote his Gutter Rich remix verse, ठीक है, मतलब उसने 2 वर्स लिखे थे, उसका पूरा ट्रैक था, and I wanted to remix that because I really love that beat and Vedang dropped it, तो I was like यार मुझे तो भाई करना है कि भाई अगर तू कर रहा है तो मैं भी तेरे साथ कर रहा हूँ, वो वाला सीन हो गया था। एंड उसके बाद स्मोक का भी सेम सीन हुआ कि भाई अबे इसमें स्मोक भी आ गया, एंड उसके बाद क्या सीन हुआ कि लाइक वायशाक भी हो गया उसमें,
then I was like कि अरे इसको भाई Rebel mix कर रहा है, then Rebel ने भी फिर अपना एक like last में beat switch डाला है, तो I don't know, like everything just came together and वो होना था तो वो हो गया भाई, and उसकी वीडियो भी बहुत crazy, बहुत crazy bro, बहुत उसकी like it was so unplanned, like हम सारे गलत scenes के गलत सीन्स के क्रिप के पास ही थे, एंड पता नहीं मैं एकदम से देख रहा हूँ कि सारे आ रहे हैं, कोड ज़ैप सिंह एंड हिज ब्रदर इंदर एंड इंसनॉइड से मिला मैं उस दिन, वायशाक, हुजूर, सैबी, रेबल एंड लाइक हम सारे आ रखे हैं वहाँ पे, एंड कारनेज भी था वहाँ पे, तो लाइक आई हैड दिस लाइक गली हिप हॉप की हुडीज थी, सो वी वर लाइक चल भाई यही सब पहनते हैं, यहीं पे यहीं पे शूट कर लेंगे, तो हमने सोचा था कि हाँ भाई वन टेक वीडियो है वो, तो वो वन टेक करने के लिए हमें लाइक कम से कम 6-7 बार हमने लाइक वो रिकॉर्ड किया था, लिटरली सा कॉन्सेप्ट बहुत कान फाड़ता ब्रो, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट, यही तो मेन चीज था। शाउट आउट टू स्मोक यार, मतलब उससे ब्रूटल बैटल रैपर नहीं देखा मैंने, बहुत भाई लाइक इंडिया का बैटल रैप सीन बहुत ज़्यादा लाइक बहुत पोटेंशियल है भाई उसमें। सो मेरा क्वेश्चन है, व्हाई कृतज्ञ इज सो एस्थेटिक? इंस्टाग्राम पे भाई इतना एस्थेटिक ब्रो, मतलब कोई बता नहीं सकता कि ये यही कृतज्ञ है, ओवर एस्थेटिक है भाई इधर करते ही, तो it's just it's because maybe I'm a fan of designs and stuff, मैं खुद भी designing करता हूँ, and it's not like कि because मैं starting से I'm into visual art, तो there was this कि like एक भाई खुद का शौक है वो, it's like I have to I love the designs and stuff, तो मुझे एक अपना वैसे ही तो मैं जैसी चीजें मुझे पसंद है मैं वैसी चीजें पोर्ट्रे करता अपने लिए चाहूंगा, so it's exactly like this कि मैं जैसे ट्रैक सुनूंगा ना, I'll try to create something like that, like even though it's me, but it's like वो कहते हैं ना कि you're gonna find your sound in between the 3 rappers who जिनका आप like influence होता है, so yeah. सही, अभी रेड बुल स्पॉटलाइट आई MX प्लेयर की सीरीज, उससे पहले MTV हसल आया, हाँ, उसके बाद से लगता है सीन थोड़ा अपलिफ्ट हुआ है। I mean there's like a lot of platforms involved, तो I feel it's like better कि ज़्यादा आर्टिस्ट को like एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपने चीज़ों को शोकेस कर सके, एंड इट्स अ बेटर थिंग कि जब लोगों को भी एक ज़्यादा लोग डिस्कवर करने को मिल रहे हैं, ठीक है, एंड नॉट एवरीवन लाइक, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लाइक अ लॉट ऑफ brands are taking initiatives, they are doing shows, and a lot of collaborations are happening, and it feels good because it's needed, क्योंकि we need like some revenue and more brands and more labels and more documentation, and we need more music journalists, we need like क्योंकि if we'll see ना कि like we have a lot of rappers in this scene, लेकिन बाहर के अगर हम सीन से इवन तो लाइक वो तो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकल हो रखा है, बहुत टाइम से चल रहा है, इट्स स्टेबल क्योंकि वो एक इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ क्रिएट हो रखी है, वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, यहाँ पे वी आर लाइक स्टिल सेटिंग अप बेसिकली अंडरग्राउंड में रह रहा है अभी, बाहर इतना नहीं आ पा रहा भाई। उसका भी लाइक एक ये सीन है अबाउट आई फील एज कि लाइक जो भी क्यूरेटर्स हैं दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब लाइक दे आर सपोज्ड टू, समझ रहे हो? you don't see a lot of good rappers, you don't discover a lot of good rappers from articles or anything like that, तो वो एक ना वो सीन हो गया है कि फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है, it's like it's all connections and money involved now, कि like if you can pay for promotions and you'll get featured, so it's like of that, it's like that, तो I feel कि like
if like ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई सारे क्यूरेटर्स ही ऐसे होंगे, but like there are some people who you know who would be doing their job अच्छे से, जो like you know जो पर्सनली उनको like खुद लोगों को डिस्कवर कर रहे हैं जा जाके, you know like जो मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि you know कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि they're easy to you know they're easy to write about or they're easy to you know cover. Yeah. So that's what I feel. What Kritagya do when he is not doing music? When I'm not doing music, okay, I watch movies, ठीक है, and mostly like I'm like most of the times I'm using my phone, and या फिर damn like I'm just most of the time I'm you know listening to music only, या फिर thinking about music or God भाई क्या सवाल था ये, नस नस में म्यूजिक. yeah मतलब म्यूजिक इज समथिंग यू ब्रीथ. yeah it's मुझे ना भाई अभी वो एक केंड्रिक लमार का इंटरव्यू याद आ रहा है. So उसमें like he said कि you know music is all he thinks about, and वो सोता भी नहीं है. So that's something like I related a lot, because I like there's this project of Kendrick Lamar, overly dedicated, and I relate to that a lot. Yeah. Because trust me, like I'm a very like from like people जो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं ना, they know I'm a very lazy guy and very like you know I'm a procrastinator. ठीक है, but when it's like something that I really love or care about, I'm really passionate about it and I'm overly dedicated for it. So that's like why I'm you know that's why I'm making music, because you know Music there's is that this thing. there's this thing that makes me keep going. मुझे याद है आपने साइफर कराया था सबसे पहला, जो काफी वायरल हुआ था, और उसके पीछे की बैक स्टोरीज व्यूअर्स को बतानी चाहिए भाई ये स्टोरी. तो हमें तो पता है, बट हमें तो पता है, हमें व्यूअर्स को जानना. All right, so in 2016 तो I was planning this cipher, and तो मैंने like एक पोस्टर बनाया, Facebook इवेंट पेज बनाया, and I was expecting around कि 20-25 लोग आएंगे, and that was a huge number for me उस टाइम के लिए. उस टाइम पे एंड रातों रात लाइक 1-2 दिन में वो इतना ज़्यादा वो ना फेसबुक पे वो वायरल हो गया, ठीक है. एंड मैं ना वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, एंड आई वाज लाइक कि लाइक वायरल हो गया, लेकिन क्या पता भाई लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है. बट आई स्टिल अरेंज दिस एम्पलीफायर विद मी. तो मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ बैक टू डियर पार्क हौस खास. तो मैं वहाँ पे जाके देख रहा हूँ, एंड आई एम लाइक शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पे भाई 200-250 लोग खड़े हैं एट अ फकिंग पब्लिक पार्क. जब मैं भाई 20 लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट इवन यू नो आई फील लाइक व्हाट द फक इज दिस हैपनिंग, कि यू नो because there was a lot of b-boys, there was a lot of rappers, there was a lot of beatboxers, and सारे like किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं, like everyone started on their own. They had their you know Bluetooth speakers and whatever and whatnot. And फिर वहाँ पे क्विंट इंडिया भी आई उसको. Okay भाई, shout out to Delhi police, they slapped a 17-year-old me. And फिर हाँ मैंने बाद में ना like I learned from it. क्योंकि मुझे पता चला यार मेरी गलती है, क्योंकि एक पब्लिक पार्क पे तुम ऐसे नहीं ऑर्गेनाइज करा सकते इतना बड़ा विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम यू नो पुलिस और अथॉरिटीज. तो मैंने कहा हाँ यार भाई गलती तो है. लेकिन फिर उस टाइम पे क्या हुआ था, पुलिस ने हम सबको भगा दिया था. एंड वो एम्पलीफायर लेके मैं मुझे पता है भाई मैं चाटा खा के आया हूँ. एंड जो भी आसपास थे सारे कोड वाज देयर एंड अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक बहुत लोग आए थे भाई. मुझे तो मतलब याद भी नहीं कौन कौन आया था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत पहले की बात है. फ्रिस्क मुझे भाई शाउट आउट टू फ्रिस्क, शाउट आउट टू फ्रिस्क. एंड फिर भाई मैं चाटा खा के वहाँ से मैं आई वाज लाइक कि भाई ये ना ये इक्विपमेंट जो मेरे पास था एम्पलीफायर, वो मेरा भी नहीं था. इट वाज लाइक अ फ्रेंड मैं जिससे लेकर आया था. I was like मैं डर गया था, I was shit scared कि भाई
पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे इसे, लाइक यू नो, हाँ क्योंकि सबको पता है कि मैंने ही करवाया है। तो मैंने कहा भाई चलो इसे उठा के, एंड मुझे लिटरली याद है मैं चल रहा हूँ लेके, एंड पुलिस वाले भाई पीछे ये क्या पता नहीं करने लग गए ये वो, एंड ठीक है मैं वहाँ से जा रहा हूँ, एंड सीधा मैं भागते भागते गया मंदिर में। एक मंदिर में घुस गया मैं जाके, और वो भाई मंदिर में इक्विपमेंट में ले जाके, इक्विपमेंट रूम था, चुपचाप जाके मैंने वहाँ पे रख दिया कि यहाँ पे किसी को पता नहीं चलेगा। एंड फिर मैं ना वहाँ से जाके सीढ़ियों से मैं देख रहा हूँ कि लाइक ओ भाई क्या हो रहा है, लाइक यू नो मैं देख रहा हूँ भाई बी बॉयज भाग रहे हैं उनके पीछे पुलिस भाग रहे हैं। तो भाई बहुत क्रेजी सीन था। लेकिन उसके आधे घंटे बाद सारे लाइक उसी स्पॉट पे पहुंच गए थे जहाँ पे पहले हो रहा था, एंड आई वाज लाइक भाई यूनिटी भाई क्रेजी कम्युनिटी, यही तो हिप हॉप है ब्रो। फिर वहाँ से लाइक पूरा भाई साइफर वगैरह हुआ अपने आप। हुआ वो इवेंट ना? हाँ सक्सेसफुली हुआ, इवन दो यस। फिर उसके बाद लाइक हम सारे वापस आ रहे थे, देन आई यू नो फिर लाइक टाइम हो गया था, वो पार्क बंद होने का टाइम होता ना, तो अंधेरा भी हो रहा था, सो वी वर लाइक कि चलो निकलते हैं। तो हम सारे निकल रहे थे, एंड हम लाइक पुलिस का भी सीन हो रहा था फिर से कि लाइक पुलिस अभी भी आ सकती है फिर से। तो हम ऑटो में बैठ गए, ऑटो में 5-6 लोग थे उसमें मैं, फ्रेस्क एंड अ लॉट ऑफ रैपर्स, एंड तो बस वही सीन था कि लाइक आई मेट अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, एंड आई एम ब्लेस्ड कि लाइक एक कम्युनिटी और ज़्यादा फॉर्म हो गई। उसके बाद आई डिड दिस इवेंट 2017 में, दैट वाज दिल्ली हिप हॉप मीट 2017, एंड उस टाइम पे मैंने लाइक आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स कि मैंने हाँ एक अच्छे से जगह ली, मैंने साउंड अरेंज करी, डीजे कर्मा हेल्प मी अ लॉट। शाउट आउट डीजे कर्मा यार, ही इज द रियल, ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट, इफ यू डोंट नो, स्टार्टिंग में जब हिप हॉप नाइट्स होती थी सैटरडे को हॉस खास में, ब्रो लाइक डीजे कर्मा इज इन हिप हॉप, मैं जितने साल का हूं ना मुझसे ज्यादा से वो उस टाइम से हिप हॉप में लिटरली he was spinning hip hop over here 2002-2003 से। हाँ like तुम सोच सकते हो इंटरनेट से पहले के टाइम पे भी my dad used to groove on his music, my dad used to groove on his music, oh bro. shit crazy shout out to your dad uncle OG real ones no so like and it was a great feeling कि like I told DJ Karma about it कि भाई मैंने ना कि I did this cipher, and you know it had a lot of response, and I want to do it again next year, and अच्छे से like plan करके, so he helped me out with you know sponsorships and stuff, and DJing वगैरह। फिर मैंने ना like बहुत सारे जितने भी मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे ना उस टाइम पे मैंने, the lineup was crazy, 30+ performers थे वहाँ पे, सीधे मौत was there, Youngsta was there, dope, and Maniston, me, Smoke, Code hosted it, Puneet Kohli, Marshall the Third, and you know Rachit Sood. Oh yeah, shout out to Rachit Sood, yeah, he's my man. Like Rachit Sood, Rishi ji, and Frisk, Vaishak, Rebel, like everyone was there, you know. तो उस टाइम पे क्या हुआ, रफ्तार shared the poster. Yeah, I remember. And then like it was a free event, and वो और ज़्यादा उस पे भाई 350 लोग आ गए। तो it was like कि हाँ ठीक है, I'm doing these initiatives at a very young age, but I'm getting a lot of you know, because I was doing it for the community. I literally spent like 2 months to literally figure it out. मैं खुद जाके पुलिस से जाके like written permission ले रहा हूँ, and you know यही सब चीज़ें। So that was a great thing because I felt like I have to do this for the community. Yeah. Because it was like कि it was like कि कौन करा रहा है, तो I was like कोई नहीं करा तो मुझे ही कराना पड़ेगा, मुझे कराना पड़ेगा। So that was the feeling behind it. So do you think जो mainstream artist हैं वो overrated है? काफी overrated है? Do you think? Overrated? I don't feel like everyone has their own opinion, but if it's like people are not listening to everyone. समझ रहे हो? Like I feel people can develop their taste more
अगर उनके पास और ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे. Yeah. अगर उनके पास सिर्फ वही 3-4 रैपर्स 4-5 रैपर्स आ रहे हैं तो वो लाइक उसके अलावा और एक शेल में बन जाएंगे. यू नो वो कभी एक अच्छा सीन नहीं होता. लाइक if you are you know into hip hop and like if you're enthusiast enough you will go look out for more artists to listen to and you will you know कि like oh he's different. तो ये सीन है वो खुद डिस्कवर करोगे. तो ओवररेटेड वाला ये सीन नहीं है, लोगों ने बना रखा है बेसिकली. लाइक ओवररेटेड हाँ वही है कि अगर मुझे कुछ यू नो अगर किसी के बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं और तुम्हें जो पसंद है उसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं तो यू ऑब्वियसली गोना फील कि लाइक दिस गाय इज ओवररेटेड बिकॉज दिस गाय डिजर्व्स that thing. deserves recognition too. It's not like कि this guy doesn't deserve recognition. It's like this guy deserves it too. तो ये सीन. और अगर कृतज्ञ म्यूजिक नहीं कर रहा होता तो कृतज्ञ क्या कर रहा होता? I'd probably be you know बचपन से ही I was you know innovating things and I was into drawing and stuff. I was like anything creative. I would be doing anything. Graffiti, I creative, guess. पता नहीं भाई. कुछ भी हो सकता है. I still might you know pick up graffiti and I start you know learning things. I can never like stop myself from you know learning new things and. So one advice to our viewers जो aspiring musicians है, artist हैं, उनके लिए. जो aspiring है भाई just create what you want to create and you know start listening to more and more stuff, then you're gonna learn more and just be like true to yourself and don't pretend that you have to you know just be yourself. That's the best thing you can do for yourself. Like for me, मैं personally बताऊं जैसा मैं इंसान हूँ, if it's gonna reflect in my art, I'm a great artist. Yeah. समझ रहा है कि it's like अगर जैसा मैं कोई मेरा गाना सुन के मुझे जान सकता है ना, तो that's a great thing for me. Like मैं के विंटर्स के बाद से जानता हूँ, फिर हम एक इवेंट पे मिले थे, ठीक है, वो बहुत सिक था. तो अभी कुछ एक्सक्लूसिव बताओ, जैसे मेरे को तो पता है बट हमारी ऑडियंस को कुछ आने वाला है. क्या आने वाला है? आने वाला है तगड़ा एक्सक्लूसिव सा. Okay, I'm working on the deluxe version of the mixtape and even though like इसमें इतना ज़्यादा delay हो गया है ना, तो I'm like dropping 18 tracks more. So the entire track list would be 28 tracks. It's a birthday date also. Yeah, just because it's it's a silly Trivia. thing, but yeah, it's like long overdue hai, so I have to drop a lot of good music and it's it features a lot of people I actually like wanted to work with बहुत time से, और a lot of people I discovered myself कि like भाई I love his sound, like let's work, and you know it was like Deluxe में I feel I'm the featured artist and it's like everyone is doing their thing and I'm just with them, you know, it's like that. Like I'm a fanboy of yours, to be very honest. I like your music. ठीक है, तो अभी आपको अपने फैंस मिलते हैं, फिर लिसनर्स मिलते हैं, हाँ, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं देख के? भाई कृतज्ञ, लाइक मेरे को तो ऐसे हो गया था, कृतज्ञ शर्मा messaged me, like me, he liked the post. Are you serious bro? इसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा भाई, and it's he'll be crazy. like, भाई कृतज्ञ ने मैसेज कर दिया. भाई okay, there's this thing I don't like about a lot of artists. They don't treat their listeners nicely. And I feel He bad. fucking follow me yaar on Instagram. Literally bro, I'm a celebrity now. God complex. It's like कि I feel कि like you know भाई मेरे लिए है वो, like I have to treat like people who take out time for me or like to listen to my stuff अपनी time, तो मैं भी भाई उनके लिए time निकालूंगा, सीधी बात है. तो that's just me returning the favor I guess, or making them feel good. That's the best thing I can do. So How can someone be so humble? हाँ, मैं कहने वाला था. ठीक है, तो अब क्लोजर करते हैं अपने पॉडकास्ट का. थैंक्स ब्रो फॉर हैविंग अस. It was amazing.
सो रैप अप करते हैं आज का सेशन और थैंक यू गाइस. थैंक यू गाइस. ग्लो अप मिक्सटेप आने वाली है. Glowing mixtape, it's about to drop, and yeah, just look out for my Instagram and you're gonna Stay know tuned, when link it in the drops. bio. Yeah.